ہمارے لوگوں کو صرف اتنا پتہ ہے کہ شاید 1947 14 اگست 27 رمضان المبارک شاید ہم صبح اٹھے تو ہمیں پتہ چلا کہ جناب پاکستان بن گیا. لوگوں کے آج کل کی جو جنریشن ہے، آج کل کی نوجوان جو نسل ہے، ان کے ذہنوں کے اندر یہ خیال ہے. تبھی تو 14 اگست پر وہ بجائے پرچم لگانے کے، وہ بجائے نفل پڑھ کے شکرانہ ادا کرنے کے، وہ موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کے یا وہ باجے لے کر پاں تو کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن ان کی آنکھوں میں سے اشک جاری آپ کو کبھی بھی نظر نہیں آئے گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو بتایا نہیں جاتا کہ ملک پاکستان ہمارے سے وجود میں کیسے آئے. نوجوان بیٹھے اسکولوں میں پڑھ کے آئے، 2 قومی نظریے آپ لوگوں نے پڑھے، 8ویں کلاس سے پڑھانا شروع کیا جاتا ہے 2 قومی نظریے، لیکن ہم بھول گئے کہ 2 قومی نظریے کیا تھے. البیرونی نے سب سے پہلے 2 قومی نظریے کا نظریہ پیش کیا تھا، اور 2 قومی نظریے جو تھے اسی کی بنیاد پر پاکستان ہمارے سے وجود میں آیا تھا. اور اسی 2 قومی نظریے کو لے کر قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ 1944 کے اندر علی گڑھ یونیورسٹی کے طلبہ سے خطاب کرتے ہیں کہ مسلمان الگ قوم ہے، ہندو الگ قوم ہے، ان کا کلچر الگ ہے، ہمارا کلچر الگ ہے، ہمارا رہن سہن کا معاملات الگ ہے، ان کے معاملات الگ ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم وحدہ لا شریک کے آگے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے آگے جھکتے ہیں. کہا کہ ان کا اور ہمارا میلان کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور پھر 1945 کے اندر ایڈورڈ یونیورسٹی پشاور کے اندر بھی قائد اعظم محمد علی جناح اسی بات کی تقریر کرتے ہیں اور نوجوانوں کو بتاتے ہیں، طلباء کو، کہ بیٹا ہمارا اور ان کا کلچر ایک نہیں ہو سکتا. ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے. اور برے صغیر پاک و ہند جب تک ابھی پاکستان ہمارے وجود میں نہیں آیا تھا، تب بھی مسلمان جو وہاں بستے تھے وہ ان کو تسلیم نہیں کرتے تھے. تب بھی ان کے دلوں کے اندر نفرت تھی، لیکن وہ صرف چونکہ ایک نظام کے تحت چل رہے تھے، ایک نظام کے تحت چل رہے تھے، اس لیے یہ خاموش رہتے تھے. وگرنہ تحریک آزادی تو 1857 سے چلی تھی. لوگ تو بعد کی باتیں کرتے ہیں نا، 1857 سے تحریک آزادی چلی تھی. اور بڑے بڑے لوگوں نے جب انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، علماء نے، لوگوں کو تو صرف یہی پتہ ہے نا کہ فلانا 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 تھا، اور یہ آج کل حکمران بھی یہی بیٹھ کر بیان کرتے ہیں، ہمارا ابا بھی تھا، ہمارا دادا بھی تھا. ان کو پتہ نہیں اس وقت ان ابو دادوں کی کوئی نہیں سنتا تھا. رب کعبہ کی قسم پر رسول پر بیٹھا ہوں، اگر اس وقت کسی کی کوئی سنتا تھا تو وہ صرف علماء ہوتے تھے، علماء کی لوگ سنتے تھے، کیونکہ دور دراز سے لوگ مسجدوں میں جمع ہوتے تھے. بڑے بڑے نام پر علماء، سید احمد شاہ مدراسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. سید احمد شاہ مدراسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان لوگوں نے پکڑ کر شہید کر کے چاندنی چوک کے اندر کئی دن تک ان کی لاش لٹکائے رکھی. شہید سید احمد شاہ مدراسی کو یہ پھر بھی گولیاں مارتے تھے، شہید کھڑے تھے چاندنی چوک کے اندر. علماء کی تاریخ، کردار علماء کو پڑھ کے دیکھیں پاکستان کے اندر. 1858 کے اندر آپ کو پھر شہید کیا گیا. علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، کالے پانی کی سزا ہوئی، اور اتنی آپ کو ذلت کے ساتھ وہاں پر رکھا گیا. جب آپ کا آخری وقت آیا نا، آخری وقت آپ لیٹے ہوئے تھے، اب انگریز پاس آئے. انگریزوں نے کہا کہ اب شاید مرنے کے قریب ہے، شاید اپنے موقف سے پھر جائے. کہا کہ اب بھی کیا کہتے ہو کہ انگریزوں کے خلاف جہاد فرض ہے. تو پتہ کیا کہا تھا علامہ فضل حق خیر آبادی؟ یہ آج کا کوئی ٹرو مرو سیاستدان نہیں تھا، یہ تو ٹرو ہے نا، بک جاتے ہیں، میں حقیقت بات کہہ رہا ہوں. یہ آج کل کے ٹرو سیاستدان بک جاتے، تبھی تو ایک پارٹی سے پیسہ نہیں ملا تو دوسری پارٹی میں گھس جاتے ہیں. میری باتیں لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں، یاد رکھیے کہ دوائی ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے. کبھی کوئی شوق سے دوائی نہیں کھاتا. انجیکشن ہمیشہ تکلیف دیتا ہے، لیکن اس تکلیف کے بعد انسان کو آرام آتا ہے. یہ علماء حق تھے. علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت کہا کہ تم کیا بات کرتے ہو کہ آخری وقت جب میرا دنیا سے ایمان سلامت لے کر جانے کا وقت ہے، کہا کہ اس وقت میں اپنے موقف سے بدلوں گا. کہا کہ فضل حق کا جو موقف پہلے دن تھا، مرتے دم تک آخری سانس تک بھی فضل حق کا موقف وہی ہے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد فرض ہے. اور پھر جب لوگ علامہ فضل حق خیر آبادی کے صاحبزادے ان کی جو ہے رہائی کے وہ کاغذات لے کر جب وہاں سے چلے تھے نا کورٹ سے، اس وقت جب وہ چلے تھے
तो आपने अपने वालिद की, आज हमारे वालिद की रिहाई हो जाएगी, लेकिन पता नहीं था कि वालिद हालत किसने में। उधर से रिहाई के कागज लेकर जा रहे थे और आगे से एक जनाजा आ रहा था। लोगों से पूछा कहा कि जनाजा किसका है? लोगों ने बताया तुम्हारे बाप फजल हक खैराबादी का। आप ये चाहते ही नहीं थे कि मैं अंग्रेजों के हाथों आजाद हूं, बल्कि अल्लाह से दुआ की अल्लाह इनके आजाद करने से पहले तो मुझे दुनिया से ही आजादी अता फरमा दे, ताकि कयामत के दिन लोग ये न कहें, मेरे मरने के बाद लोग ये न कहें कि फजल हक खैराबादी को अंग्रेजों ने आजादी दी थी, कि आजाद कर दिया था, एहसान किया था। कहा कि मैं इन बदबख्तों से ये एहसान भी मौला नहीं लेना चाहता, मौला तू इनकी आजाद करने से पहले मुझे दुनिया से ही आजादी अता फरमा। लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी थी, हमें पता ही नहीं। मौलाना अली रजा खान साहब, मौलाना नकी अली खान साहब, बड़े बड़े उलमा अपनी जानें देकर चले गए। तहरीक पाकिस्तान, आजादी पाकिस्तान के पीछे सिर्फ आम लोगों का हाथ नहीं था, किरदार आप उठाकर देखिए। 1925 के अंदर बनारस के अंदर पहला जलसा हुआ जो उलमा ने किया। आज इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस की थी बनारस के अंदर, 1925 के अंदर पहली की, 1935 के अंदर दूसरी की, 1945 के अंदर तीसरी की, और उसके अंदर बड़े बड़े नामवर उलमा खड़े हुए और उन्होंने बड़े लोगों को, जब इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती थी कि लोगों के पास पांव रखने की जगह नहीं होती थी, इंडिया के अंदर ये कॉन्फ्रेंस होती थी बनारस के अंदर, और उस वक्त ये कहा करते थे उलमा खड़े होकर, उलमा कहते थे इस्लाम खतरे में है, मुसलमानों इस्लाम खतरे में है, संभल जाओ, मुस्लिम लीग को वोट दो। लोगों ने कहा आज की मुस्लिम लीग की बात नहीं कर रहा, उस वक्त जो मुस्लिम लीग बनी थी। कहा कि मुस्लिम लीग को वोट देना, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम डूब जाएगा। आज तुम्हारे पास वक्त है। खौफे खुदा लोगों को दिलवाया और सारे वोट इकट्ठे किए उलमा ने। इकट्ठे करने के बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से कहा, मोहम्मद अली जिन्ना, लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे हमने जमा कर दिया, पाकिस्तान के लिए रजामंद भी कर दो। फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से खिताब करवाया गया। उलमा ने अपना बड़ा किरदार पेश किया था उस दौर के अंदर भी, और पाकिस्तान ऐसे नहीं बन गया था। इस पाकिस्तान की बुनियादों के अंदर नवाब सिराजुद्दौला की शहादत से लेकर टीपू सुल्तान की शहादत, मुगलिया सल्तनत के जितने भी बड़े बड़े बादशाह आए, आखिर तक बहादुर शाह जफर की शहादत तक जितनी भी शहादतें हुई, आजादी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अजीम दास्तानें हैं। और इसके अंदर न सिर्फ बुजुर्गों, बच्चों, औरतों, बूढ़ों, जवानों, तमाम की कुर्बानियां हमारे इस आज़ादी के अंदर मौजूद है। हर एक ने अपनी कुर्बानी, मुझे अच्छी तरह से याद है 2010 में जब मैं कराची गया तो एक औरत थी, बिल्कुल बूढ़ी थी, वो बिहार थी, बिहार से आई हुई। उसने बताया, उसने ऐसे गुफ्तगू हुई तो बात छिड़ी तो वो औरत, बूढ़ी औरत बताने लगी, कहती है कारी साहब जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उस वक्त हम बिहार के अंदर रहते थे इंडिया में। कहा कि मेरे वालिद साहब इंतकाल कर गए थे और हम 2 बहनें थी, हमारी वालदा में वहाँ से लेकर निकली। कहा कि लेकर निकली, कहा हम ऐसे आते थे, कहा कि रास्ते में मेरी वालदा थक जाती थी हमें उठाओ, कहा हमें अच्छी तरह से याद है, हमारे पाँव में आंवले हो गए थे, पाँव से खून आने लग गए थे, कहा हमारी माँ के पाँव से भी खून आते थे, लेकिन मेरी माँ मुझे उठाकर आगे छोड़ आती थी, फिर जाकर मेरी दूसरी बहन को लेकर आती थी। कहा जब दुश्मनों को खौफ होता था हमारी माँ हमारे ऊपर लकड़ियां डाल देती थी, कहती थी मर जाना लेकिन आवाज नहीं निकालना। कहा हमारे ऊपर घास डाल दिया जाता था। कहा हम जिस जुल्म सितम के साथ और जिन आजमाइशों के साथ पाकिस्तान में आए थे वो हम जानते हैं। हमें तो खादी में रखा हुआ पाकिस्तान मिल गया ना, तभी 14 अगस्त पर सल्तनत निकाल के फड़ा और बाजे बजा के पाव करते हैं हमें क्या पता कि मुल्क पाकिस्तान कैसे है। खुदा की कसम, जिन लोगों की जाने गई, इंडिया से वो ट्रेन चली थी जिसके अंदर लाखों मुसलमानों को ट्रेन में बिठाया गया था। जब वो ट्रेन लाहौर स्टेशन पर आकर ठहरी थी, एक भी मुसलमान उसके अंदर जिंदा नहीं था, बच्चा भी जिंदा नहीं था। हमारी माँ बहनों की छातियों को काटा गया था। हमारी माँ बहनों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए दरियाओं में छलांग लगाई, कुओं में छलांग लगाई। तुम समझते हो पाकिस्तान ऐसे बन गया? इसके पीछे बड़ी कुर्बानी है। ये जो आज खा रहे हैं ना, कुत्ते की तरह खा रहे हैं मुल्क पाकिस्तान, उनको क्या पता कि मुल्क पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों के बाद बारिश से वजूद में आया था। 2 कौमी नजरिए थे, 2 कौमी नजरिए, हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है। आज तो ये उनके चरणों में जाकर बैठते हैं। इनको पता ही नहीं कि 2 कौमी, जो पढ़ के ही अंग्रेजों की यूनिवर्सिटियों से आए, बताओ वो आपको 2 कौमी नजरिया बताएगा? जो पढ़ के ही अंग्रेजों से आए, बताओ वो आपकी पार्लियामेंट में बैठकर आपको बताएगा इस्लाम का कल्चर क्या है? जो पढ़ के ही यहूदियों से आए, वो आपको बताएगा कि इस्लाम क्या कल्चर हमें देता है? जो खाता ही
जो चलता ही, जो बोलता ही अंग्रेजों के इशारों पर हो, गैर मुस्लिमों के इशारों पर हो, वो आपको बताएगा कि रसूलुल्लाह का फरमान ये था। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हुजूर ने इशारा दिया था कि पाकिस्तान बनाना है, उठ क़ायद आज़म, मैं तेरे साथ हूं, पाकिस्तान बना। पता है ये लोग आज के दौर के अंदर लोग ऐसे हैं, नाम निहातुल्लाह है, क़ायद आज़म को काफिर आज़म कहते हैं। पता है आप लोगों को? ऐसे बदबख्त हैं, और ऐसे भी बदबख्त सियासतदान भी हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान गुनाह का काम था, अल्लाह का शुक्र है हम गुनाह के काम में शामिल नहीं। जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनाया गया वो गुनाह का काम था। निकले जरा बाहर, आप भी देखें कौन का मुआयना करे, कौन हक पर है और कौन ना हक है। इन बातों को समझे और मुल्क के पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया था उस मकसद को समझे, और अपनी कौम को ये पाँव वाले बाचे ना लेकर दें, अपनी कौम को मस्जिद में लाएं, शुक्राने के नवाफिल अदा करें, बताएं उनको कैसे बारिश से वजूद के अंदर आया। पार्कों के अंदर इस रात इनको घूमने न जाने दें, अब पुत्र घर में बैठ, इधर आ, आज नियाज बनाइए, और जिन लोगों ने बारिश से पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी थी आज हम उनके लिए सारे सवाब करें। पता चले हमारी कौम को कि हमारा मुल्क पाकिस्तान कैसे बना था। अफसोस की बात तो ये है इन दिनों में यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और स्कूलों के अंदर इल्ला माशाल्लाह जो है वो एक अलग बात, लेकिन इनके अंदर ड्रामे रखे जाते हैं, ड्रामे रखे जाते हैं। और बताओ कौम को, तुम्हारे पास स्टूडेंट पढ़ने आए हैं, बताओ इनको, जब इनके स्कूल ही एनजीओ चलाएंगी, जब इनको फंड बाहर से आएगा स्कूलों के लिए, तो फिर ये खाक बताएंगे दो कौमी नजरिए क्या होते हैं, उसकी तफसील बताएं कौम को। खुदाई हाफिज है, यकीन कीजिएगा जिन लोगों ने कुर्बानियां दी थी ना वही जानते हैं कि कुर्बानियां क्या होती। मुझे और आपको क्या पता, हमें तो मुफ्त में मिल गया ना पाकिस्तान। आओ आज इस जुम्मतुल मुबारक की इज्तिमा से ये नियत लेकर जाओ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम मुल्क के पाकिस्तान के बनने के मकसद को समझेंगे। जो दो कौमी नजरिए थे, हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन अलग है, उनका रहन सहन अलग है, और जब अलग है तो हम अलग करके भी दिखाएं कैसे है। हमारा कल्चर नमाज पढ़ना है, उनका कल्चर बुतों की पूजा करना है, हमारा कल्चर रसूलों पर ईमान लाना है, उनका कल्चर वीदों पर ईमान लाना है, हमारा कल्चर कुरान पर ईमान लाना है। हमारा ये इस्लाम है। हमारे कल्चर के अंदर हराम हराम है, लेकिन उनके कल्चर के अंदर हराम को हराम नहीं समझा जाता। बातों को समझे। अल्लाह पाक हम सबको मुल्क के पाकिस्तान के बारे से वजूद में आने के मकसद को समझने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन मुल्क के पाकिस्तान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। मैं और आप इसको बनाने के लिए कोशिश रहें, मैं और आप इसकी तरक्की के लिए कोशिश रहें। अगर मैं इसमें डंडी मार रहा हूँ ना तो मैं अपने घर में डंडी मार रहा हूँ, अगर मैं इसमें धोखा दे रहा हूँ तो मैं अपने घर में धोखा दे रहा हूँ, अगर मैं इसमें किसी के साथ वादा खिलाफी कर रहा हूँ तो मैं अपने घर में वादा खिलाफी कर रहा हूँ, अगर मैं किसी का हक मार रहा हूँ तो मैं अपने ही घर का हक मार रहा हूँ। मुल्क के पाकिस्तान को समझिए, ये खुदा दाद सल्तनत है, इसकी कदर कीजिए। अल्लाह पाक हम सबको मुल्क के पाकिस्तान जैसी अजीम नेमत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अंदाज़े बयां करके शौक नहीं, शायद कि उतर जाए तुम्हारे दिल में ये मेरी बात को माना ले जाए।